Today we are going to study a top poem. The name of the poem is Ball Poem, as it is there in the heading. It's a class 10 first slide poem. This is the poem of chapter 3. From the prose we have studied up to chapter 6, but in the poem section is from chapter 3, the Ball Poem. It is written by John Barry. Okay, it's written by John Barry. Now, what is this poem state? First of all, before starting the poem, let's get through the preface of what this poem intends to say has been given in this blue box. A boy loses a ball, he is very upset. A boy doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक बच्चा अपनी बॉल को खो दिया है, बहुत उदास है। बॉल की कीमत भी ज्यादा नहीं होती और नया बॉल खरीदना भी मुश्किल नहीं होता। तब भी वो बच्चा उदास है, क्यों? Read the poem to see what the poem thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो इस पोएम में पोएट के अनुसार बच्चे ने क्या गुम किया है? सामने तो हमें दिखाई दे रहा है कि उसका एक बॉल गुम हुआ है, लेकिन पोएट के अनुसार उसने क्या गुम किया है और उस बच्चे को क्या सीखना चाहिए इस अनुभव से? किस अनुभव से? उसका जब कुछ गुम होता है। I'll read this poem once, just to get the words clear. Now, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the ball. As he stands rigid, trembling, staring down, all his young days into the heart of rain. His ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now, he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So, this is the poem. There are a few words given in the glossary section. Oh, there are other balls, shaking, rigid. These are some of the words. Now, coming to the explanation. This poem starts with the line, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? Before we get started with the poem, we will see there is no verse in the poem. Verse means it's written in free verse and has no rhyming scheme. What is rhyming scheme? Generally in poem you will see that the last word of the first line will match the sounding of either the second line or the third line or the fourth line, but they rhyme. They are called as rhyming pattern. But in this case, you see there is no words are matching with the previous words. No sounds are matching with the previous words. This poem, so this kind of poem is called as free verse poem. Now, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it do. पोएट कहता है, अब वह बच्चा जो बच्चा अपनी बॉल गुम कर दिया है,
What is he to do? वह क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. मैंने देखा है, किसने देखा है? पोएट ने देखा है। यहाँ पर देखिएगा एक बॉय है which is being observed by the author, the poet, and the person who is speaking is the author. The things which are going on with is the boy, an unknown boy, a stranger boy. Now he says here, I saw it go. मैंने देखा है उसे जाते हुए, merrily bouncing. merrily bouncing का यहाँ पर मतलब क्या हो गया? merrily का मतलब होता है खुश होकर, bouncing मतलब होता है उछलना। बॉल जब गिरता है तो क्या करता है? It hits the ground and then rises up. This is called as bouncing. A word has been added here, merrily bouncing. What this can explain? Merrily means होता है खुशी से। तो can a ball be a happy ball? No. But the word says so because the ball is bouncing. The ball is bouncing as it is happy. एक व्यक्ति जब खुश होता है तो वो क्या करता है? बहुत सारे नियम कानूनों का वो पालन नहीं करता है। वो खुश होता है, उछलता है, नाचता है, गाता है, उस समय वो बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड अप करके नहीं रखता है। तो इसी तरह से ये बॉल को भी उन्होंने एक तरह से कहा है कि इट इज मैरिली, मतलब खुश होकर वो उछल रहा है, डाउन द स्ट्रीट, सड़क की तरफ गया है, एंड देन मैरिली ओवर, और उसके बाद वो ऊपर चला गया है, ऊपर से जंप कर गया है। किसके ऊपर से जंप कर गया है? There it is in the water, और सड़क से वह बाउंस करके नीचे पानी में चला गया है। तो यहाँ तक में आपने देखा है पहले 4 लाइन में क्या हुआ है? एक लड़का है जो अपने बॉल को गुम कर दिया है या उसके हाथों से बॉल छूट गई है, और वो बॉल जो है उछलता हुआ, जंप करता हुआ, सड़क से होता हुआ जाकर पानी में गिर गया है। उसके बाद सेकंड सेक्शन, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। उसे ये कहना अब कोई मायने नहीं रखता है कि और भी दूसरी गेंदें हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉल। ग्रीफ मतलब होता है दुख, ठीक है, किसी चीज को खोने का दुख। तो अल्टीमेट बच्चे के लिए बॉल बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी चीजों के कारण वो लड़ते हैं, उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। वो कभी कभी तो किसी गिफ्ट रैपर का छिलका भी हो सकता है, किसी टॉफी का छिलका भी हो सकता है, कोई खाली डब्बा भी हो सकता है। उन चीजों के लिए बच्चे लड़ जाते हैं आपस में। तो ये तो बॉल है, बॉल उसके लिए काफी बड़ी चीज है। तो वो कहता क्या है? नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। उसे अब ये कहने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि और भी गेंदें हैं। और वो जो बॉल खोने का दुख है वो बच्चे को एक तरह से फिक्स कर दिया है, जड़ कर दिया है, वो हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। As he stands rigid, trembling, staring down. 3 वर्ड यूज हुआ है। rigid, rigid का मतलब होता है कड़ा हो जाना, ठीक है, नॉट खड़ा, कड़ा। जैसे ये चीज है, कोई भारी वस्तु है, आप उसे हिलाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा? इट वोंट शेक अप, तो वो रिजिड है। तो वो क्या किया है? स्टैंड्स रिजिड, वो खड़ा है, ट्रम्बलिंग, कांप रहा है, एंड स्टेयरिंग डाउन, और उस दौरान वो क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। किसे देख रहा है? उस बॉल को देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went. वो यहाँ पर इस पहले स्लाइड का मतलब समझते हैं। All his young days, उसके छोटे बचपने का दिन हार्बर में चला गया है जहां पर वो बॉल गया है। ऐसा क्या हो गया भाई कि वो उसका पूरा बचपना चला गया? तो उस बॉल के साथ उसकी बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई है, ठीक है। उस बॉल को वो काफी समय
साथ कई तरह की यादें उससे जुड़ी हुई है, इसलिए वो कहता है, ऑथर कहता है कि उस बच्चे के यंग डेज, बच्चा पहले ही छोटा है लेकिन उससे पहले की यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है, और बॉल चूंकि वो खाकर खाड़ी पानी में चला गया है और इसलिए उसके साथ उसकी यादें भी चली गई है। अब नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब होता है इंट्रूजन का अर्थ होता है जब हम किसी के क्षेत्र में बिना अधिकार के प्रवेश करते हैं, ठीक है। जैसे भारत में सीमाओं का उल्लंघन करके कुछ लोग घुस आते हैं तो उसे इंट्रूडर्स कहा जाता है, इंट्रूजन कहलाता है। तो यहाँ पर ये इंट्रूड कहानी कर रहा है ऑथर, उस बच्चे की सोच में, उस बच्चे की कल्पना में, उस बच्चे की याद में वो इंट्रूड नहीं कर रहा है, घुसपैठ नहीं कर रहा है। A dime, another ball is worthless. Dime जो अमेरिकन डॉलर्स होता है या मतलब कोई भी करेंसी है, करेंसी का जो छोटा हिस्सा, जैसे भारत में रुपए होते हैं, रुपए से नीचे पैसा होता है, उसी तरह से वहां डाइम होता है, ओके। A dime or another ball, एक मतलब उसके लिए रुपए या उसको बॉल खरीद कर देना is worthless, कोई कीमत नहीं है उसके लिए। Now he senses first responsibility, और अब वो अपनी पहली जिम्मेवारी, ध्यान रखिए, responsibility, पहली जिम्मेवारी महसूस कर रहा है। In a world of possessions, possessions का मतलब होता है जहां पर लोग चीजों पर अपना अधिकार जताते हैं, वो तुम्हारा है, ये मेरा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पोजेशन। तो वो एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग पोजेशन से भरे हुए हैं, अधिकारों की बात करते हैं, वहां पर वो अपनी पहली जिम्मेवारी महसूस करता है। People will take balls, balls will be lost always, मतलब लोग चीजें खरीदेंगे, यहाँ पर बॉल्स खरीदने का मतलब हो गया कुछ आपको जिम्मेवारी दी जाएगी, आप कुछ जिम्मेवारी लेंगे, ठीक है, आप कुछ जिम्मेवारी लेंगे और बॉल्स will be lost, और वो चीजें गुम होंगी, ठीक है। आप किसी चीज को खरीदते हैं और फिर वो चीज गुम होगी, and no one buys a ball, कोई दोबारा बॉल खरीदता नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाहरी होता है। He is learning well behind his desperate eyes, वो अपनी उदास आंखों के पीछे सीख रहा है। डेस्परेट का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए जब आप आतुर होते हैं तो उसके लिए हम डेस्परेट वर्ड का यूज करते हैं। तो वो अपनी डेस्परेट आइज के से सीख रहा है, किस चीज को सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक एपिस्टेम मतलब होता है नॉलेज, तो उसी से शब्द को यूज किया गया, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, किसी चीज को खोने का दुख या ज्ञान। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, तो किसी चीज को खोने के बाद किस तरह से वापस खड़ा हुआ जाता है। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, तो वो क्या सीख रहा है? knowing what every man, वो क्या सीख रहा है? वो यह सीख रहा है जो एक व्यक्ति, एक इंसान कभी न कभी सीखता है, one day know, every man must one day know, यानी हर व्यक्ति कभी न कभी वो सीखेगा, उस चीज को वो सीख रहा है।
बाद, चीजों को खोने के बाद ये सीख जाते हैं कि किस तरह से दोबारा उठ खड़ा हुआ जाता है। तो यहाँ पर लास्ट का जो सेक्शन है इसको हम समझते हैं फिर से कि ये जो आखिरी 4 लाइन है इसमें पोएट क्या कहता है, ऑथर क्या कहता है कि वो बच्चा सीख रहा है अपनी आंखों से, उदास आंखों से, आंखों के पीछे सीख रहा है। क्या सीख रहा है? किसी चीज को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद उस चीज को खोने के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है, इस चीज का वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। वो ज्ञान जो हर एक इंसान को, वो ज्ञान जो हर इंसान को जानना ही पड़ता है एक दिन, और हर इंसान कई बार उसे खोने के बाद आखिरकार सीख ही जाता है कि किस प्रकार से हमें दोबारा उठ खड़ा होना है चीजों के खोने के बाद, चीजों के नुकसान के बाद। सो ये हो गया हमारा चैप्टर का पोएम का एक्सप्लेनेशन। You will get the explanation in the written form, also in the form of PDF. The file will be sent to you today itself. Okay. So this explanation is, I think it will be helpful for you. That's all for today.